हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़े थे कंप्यूटर में हम पढ़े थे ईमेल, और ईमेल के हम एमसीक्यू कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ बॉक्स ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड टू द एंड ऑफ एन आउटगोइंग ईमेल इज कॉल्ड सिग्नेचर। उसको सिग्नेचर बोलते हैं। विच ऑफ दिस इज करेक्ट ईमेल एड्रेस? तो यूज़र नेम @website.com। इन विच ईयर ईमेल वाज क्रिएटेड? तो 1971 में ईमेल क्रिएट किया गया था। हु इन्वेंटेड ईमेल? रे टॉमलिंसन। विच फोल्डर कंटेन जंक ईमेल? तो स्पैम। विच ऑफ दिस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इज फ्री? जीमेल। What is an email sent to multiple recipients at once called bulk email? एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए ईमेल को क्या कहा जाता है? बल्क ईमेल कहा जाता है। Which of these is not a medium for email? इंटरनेट, इंटरनेट एक्सटर्नल। पेपर जो है वो ईमेल का मीडियम नहीं है। If your user exceed an email sending limit, they get an error message. You have reached a limit for sending email. You reached a Gmail sending limit. You exceeded the maximum recipients. All of these. If you use a free Gmail account, you are limited to sending a maximum of 500 email in a 24-hour period. तो 500 correct answer होगा। The attachment size limit in Gmail is 25 MB per email. Every Google account come with dash of storage, तो 15 GB storage होगा इसका correct answer. Dash is where your outgoing email are temporarily stored before they are sent. तो आउटबॉक्स में जो है हमारा ईमेल टेम्परेरी स्टोर होता है बिफोर सेंड। हाउ कैन आई सेंड 10,000 ईमेल इन जीमेल विद इन 24 आवर? तो हम 20 जीमेल अकाउंट बना लेंगे तो 10,000 ईमेल हम सेंड कर सकते हैं। Dash protect your contact's email address from being exposed to your other contact. तो BCC correct answer. Dash field should be used for the main recipients of your email and use the dash field for everyone who need to be kept in the loop. तो to field जो है वो यूज़ होता है मेन रेसिपिएंट हमारा ईमेल का, और कार्बन कॉपी फील्ड जो है वो यूज़ होता है एवरीवन हु नीड टू बी केप्ट इन द लूप। The limit of the total number of recipients in a single email, including those in the to CC and BCC field, is 2000 for Google Workspace account। 2000 है। The limit for the total number of recipients in a single email, including those in the to CC and BCC field, is dash for personal Gmail account according to Google। तो 500 is correct answer. What is the mail merge previously called multi-send limit for Gmail? तो 1500 है। Gmail के लिए मेल मर्ज जिसे पहले मल्टी सेंड कहा जाता था, सीमा क्या है? तो 1500 है। What is the use of carbon copy in Gmail? Recipient are visible to all other recipients of the message in CC. क्या आप एक ही समय में CC और BCC का उपयोग कर सकते हैं? यदि आप एक ही समय में CC और BCC फंक्शन का यूज़ करते हैं तो BCC प्राप्तकर्ता आपके द्वारा CC फील्ड में दर्ज किया गया ईमेल पता देख पाएगा, लेकिन टू और CC फील्ड में दर्ज प्राप्तकर्ता BCC फील्ड में दर्ज किसी भी संपर्क के पते नहीं देख पाएंगे। 44. Dash is a threat that involves sending email message with a fake sender address. Email spoofing. उसको email spoofing बोलेंगे। Dash is a type of online scam that target consumer by sending them an email that appear to be from a well-known source, an internet service provider, bank or mortgage company, for example। तो इसका correct answer phishing होगा।
Next, a digital form of social engineering that uses authentic looking but bogus email to request information from user or direct them to a fake website that request information called email phishing. ये तो हो गया था. Next, if you have to send multimedia data over simple mail transfer protocol, it has to be encoded into ASCII. तो ईमेल में हम ASCII यूज़ करते हैं, तो ASCII करेक्ट आंसर. When the mail server send mail to other mail server, it become simple mail transfer protocol client. When sender and receiver of an email are on same system, we need only 2 user agent. तो यूज़र एजेंट होगा. जब किसी ईमेल का प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल 2 यूज़र एजेंट की आवश्यकता होती है. Choose wrong statement in case of simple mail transfer protocol. It requests message to be in 7-bit ASCII format. Yes. It transfer file from one mail server to another mail server. Yes. It is a pull protocol. So second option is correct. Typically the TCP port used by SMTP is TCP पोर्ट जो रहता है वो कितना उसका नंबर जो रहता है वो 25 रहता है. ये याद रखेंगे. In MS Office, Dash is the software for managing email. तो MS Office में MS Outlook सॉफ्टवेयर जो है वो ईमेल को मैनेज करता है. ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट. ईमेल एड्रेस 2 पार्ट में रहता है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई नेम ऑफ द इंडिविजुअल यूज़र. The second part of email address identify name of the email server. The email ID of the secondary recipient of email is entered in dash field. तो हो जाएगा CC carbon copy. The email of the anonymous recipient of email is entered in the dash field. तो हो जाएगा BCC. The crisp essence of email message is entered in dash field. तो हो जाएगा subject. At beginning of internet era, messages sent by electronic mail were short and considered of text only. इंटरनेट युग की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भेजे गए संदेश संक्षिप्त और सम्मिलित होते थे. टेक्स्ट ओनली. There is not a part of email. Space is not a part of email. Which email protocol is incoming protocol? POP3 email protocol जो है वो incoming protocol है. एक मिनट. Which email protocol is outgoing protocol? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो आउटगोइंग प्रोटोकॉल है. इन ईमेल विच फील्ड कैन नॉट ब्लैंक. ईमेल में कौन सा फील्ड ब्लैंक नहीं रहता? तो 2 जो है वो ब्लैंक नहीं रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस. करेक्ट ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या है? तो name@website.com. An email account include a storage area often called mailbox. उसको mailbox बोलते हैं जो स्टोरेज एरिया रहता है ईमेल अकाउंट का. If email is sent to more than one person, the email address are separated by a comma. तो email address separate होगा comma से. Dash is the creation of email message which a forged sender address. ईमेल संदेशों का निर्माण है जिसे एक जारी प्रेषक पता करता है. तो ईमेल स्पूफिंग होगा. Dash involves sending 100 or 1000 of message to a person email address. ईमेल बॉम्बिंग जो है वो इन्वॉल्व है 100 और 1000 ऑफ मैसेज को सेंड करने के लिए पर्सन का ईमेल एड्रेस पे. Dash is the creation of email message which is a forged sender address. ईमेल स्पूफिंग. To write a new message email, click on compose mail. अगर हमें नया मैसेज लिखना है तो हम कंपोज मेल पे क्लिक करेंगे. Dash is the fraudulent attempt to obtain sensitive information or data by email, phone or text message. Dash is the fraudulent attempt to obtain sensitive information or data by email, phone or text message. ईमेल, फ़ोन या टेक्स्ट संदेशों द्वारा
संवेदनशील जानकारी या डेटा प्राप्त करने का कपटपूर्ण प्रयास फिशिंग कहलाता है। हाउ कैन यू सेंड अ फाइल लार्जर देन 25 MB इन जीमेल थ्रू गूगल ड्राइव? For more than 15 GB storage on Google Drive, you can upgrade to Google One. Gmail star system allow you to mark your most email most important email. कौन? स्टार सिस्टम, हाँ स्टार। By default, star message are labeled with a dash star in a Gmail star system, तो yellow star. In Gmail, search box is located at the dash of the page, top of the page. Search box जो है locate होता है top of the page. E2EE stand for end-to-end encryption. Dash is an E2E email service, तो प्रोटोन मेल जो है वो end-to-end इलेक्ट्रॉनिक end-to-end encryption सर्विस है। ईमेल इज अरेंज विथ रेस्पेक्ट टू डेट एंड टाइम। ईमेल जो है वो अरेंज होता है डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। डैश अलाउ अस टू एक्सेस आवर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। डैश अलाउ करता है हमें ईमेल को एक्सेस करना फ्रॉम कहीं से भी। वेब मेल इंटरफेस, करेक्ट आंसर। क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल अकाउंट, क्लिक ऑन साइन अप। नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप पे क्लिक करें। डैश इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू कंपोज ईमेल। डैश कीबोर्ड शॉर्टकट की जो है कंपोज ईमेल करता है, तो Ctrl+N। शॉर्टकट की जीमेल में है CC का है Ctrl+Shift+C, BCC का है Ctrl+Shift+B, हाइपरलिंक का Ctrl+K, इमोजी का है Ctrl+Shift+2 और फॉन्ट डिक्रीज का Ctrl+Shift- और फॉन्ट इंक्रीज का Ctrl+Shift+। तो ये याद रखना है Ctrl+Shift और जो है उसको लगा देना है। Ctrl+Shift कार्बन कॉपी, अच्छा C। Ctrl+Shift ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अच्छा B। हाइपरलिंक Ctrl+K, इमोजी Ctrl+Shift+2, फॉन्ट डिक्रीज Ctrl+Shift-, फॉन्ट इंक्रीज Ctrl+Shift+। फॉन्ट साइज इन जीमेल। जीमेल में फॉन्ट साइज क्या होता है? स्मॉल, डिफ़ॉल्ट, लार्ज, ह्यूज। फॉन्ट साइज 4 होता है। स्मॉल होता है, नॉर्मल होता है, लार्ज होता है, ह्यूज होता है। जैसे ये दिया हुआ स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, ह्यूज। फॉन्ट फेस डिफ़ॉल्ट इन जीमेल, सैंस सेरिफ जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस है जीमेल में। सेंड, शेड्यूल, सेंड। सेंड, शेड्यूल, सेंड क्या होता है? सेंड, शेड्यूल, सेंड, प्रिंट मेल, जो हम शेड्यूल सेंड करते हैं अपना होता है शायद। मेल को प्रिंट करना Ctrl+P, फिर एड्रेस बुक इन जीमेल। जीमेल में एड्रेस बुक, तो ये हमारा रहता है अकाउंट के पास। एड्रेस बुक क्या? आपके ईमेल संपर्कों को प्रबंधित करने का एक तरीका है। एड्रेस बुक के साथ आप अपने परिचित लोगों को की संपर्क जानकारी जैसे नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल पते संग्रहित कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये क्या करता है? कॉन्टैक्ट को मैनेज करने का एक तरीका है। इसमें जो है परिचित लोगों की कॉन्टैक्ट जानकारी जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल पता संग्रहित कर सकते हैं। हाउ डू आई मैनेज माई जीमेल एड्रेस बुक? तो एड्रेस बुक को मेंटेन करके हम जीमेल एड्रेस बुक जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जीमेल खाते में लॉगिन करें और अपने जीमेल इनबॉक्स के ऊपरी दाएं कोने पर चौकोर जैसे गूगल ऐप आइकन पर क्लिक करें। गूगल ऐप ड्रॉप डाउन मेनू पॉप अप हो जाएगा। गूगल संपर्क आइकन पर क्लिक करें। क्लिक ऑन द गूगल कॉन्टैक्ट आइकन। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें, ये ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। फिर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप आइकन पर क्लिक करेंगे आपका जीमेल संपर्क सूची पृष्ठ दिखाई देगा। जैसे सारे कॉन्टैक्ट दिखाई देने लगे।
क्लिक ऑन द क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन ऑन द टॉप लेफ्ट। तो क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन में टॉप लेफ्ट में क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक ऑन क्रिएट कॉन्टैक्ट यू विल गेट द ऑप्शन टू चूज़ बिटवीन एडिंग अ सिंगल कॉन्टैक्ट और मल्टीपल कॉन्टैक्ट। फिर हमें जो है ऑप्शन मिल जाएगा चूज़ करने का कि हमें सिंगल कॉन्टैक्ट चूज़ करना है या मल्टीपल कॉन्टैक्ट चूज़ करना है। An empty contact form will appear as shown in the image below. You can fill in your new contact information according. तो empty contact भी नीचे रहता है और तो अगर हम जो शो हो रहा है उससे नया कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। You can even add labels to the contact to categorize it into a specific Gmail group like school or work. This is what a completed forms look like. और हम जो है वो आप संपर्क को स्कूल या कार्यस्थल जैसे विशिष्ट जीमेल समूह में वर्गीकृत करने के लिए उससे लेबल भी जोड़ सकते हैं। भरा हुआ फॉर्म इस प्रकार दिखता है। ये हो गया। CEO वर्क, स्मिथ नाम, 1 मिनट। Once you done, just click on save and the contact will be added to your list. फिर बाउंस मेल क्या होता है? बाउंस ईमेल किसी ऐसे ईमेल संदेश को संदर्शित करता है जो प्राप्तकर्ता को वितरित नहीं किया जाता और प्रेषक को वापस भेज देता है। मतलब जो प्राप्तकर्ता को जो ईमेल अगर सेंड ना हो तो उसको और वापस आ जाए तो उसको बाउंस मेल कहते हैं। यह डिफरेंट रीज़न की वजह से होता है। टाइप एरर के वजह से, टेक्निकल एरर के वजह से या सिक्योरिटी की वजह से। बाउंस मेल टाइप एरर में क्या होगा? प्रेषक प्राप्तकर्ता के लिए गलत ईमेल अगर एड्रेस टाइप कर दे तब बाउंस बैक हो जाएगा। टेक्निकल एरर की वजह से बाउंस बैक हो जाएगा जब प्राप्तकर्ता का इनबॉक्स मेलबॉक्स भर जाएगा या ईमेल संदेश का आकार प्राप्तकर्ता द्वारा समर्थित सीमा से अधिक हो जाए तो ईमेल वापस बाउंस कर दिया जाएगा। बाउंस ईमेल। सिक्योरिटी, प्रेषक का ईमेल या ईमेल डोमेन पसंदीदा सूची में नहीं है और इसलिए प्राप्तकर्ता के ईमेल या स्पैम सर्वर द्वारा अवरुद्ध और वापस लौटा दिया गया है। हार्ड बाउंस क्या होता है? हार्ड बाउंस का मतलब है कि ईमेल पता स्थायी रूप से अनुपलब्ध है और उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल प्राप्त नहीं होना चाहिए। Hard bounce means that the email address is permanently unavailable and should not receive electronic mail. सॉफ्ट बाउंड अस्थायी है और सर्वर आउट स्टेज या पूर्ण इनबॉक्स के कारण हो सकता है। सॉफ्ट बाउंड इज टेम्परेरी एंड मे बी कॉज्ड बाय सर्वर आउटेजेस और अ फुल इनबॉक्स। हाउ मेनी ईमेल विजिबल बाय डिफ़ॉल्ट पर पेज? एक पेज पे कितने ईमेल विजिबल होते हैं? तो 50 ईमेल पर पेज जो है। सर्च मेल को सर्च करने के लिए टॉप पे रहता है। टू क्रिएट योर ईमेल अकाउंट विद जीमेल यू शुड टाइप इन द वेब एड्रेस। हम क्या टाइप करेंगे? www.gmail.com। एंड इनबॉक्स इज वेयर यू कैन फाइंड न्यू ईमेल। इनबॉक्स में हम नया ईमेल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। 1 मिनट। ड्राफ्ट आर एनी मैसेज यू आर राइटिंग अंटिल यू सेंड इट और ट्रेस इट। ड्राफ्ट जो रहता है ऐसा कोई भी मैसेज उसमें रहता है जो कि हम राइट करते हैं जब तक कि हम उसको सेंड या डिलीट नहीं कर देते। द जीमेल अलाउ डॉट्स इन ईमेल एड्रेस। क्या जीमेल डॉट्स को अलाउ करता है ईमेल एड्रेस में? यदि कोई आपको ईमेल करते समय गलती से आपको पते में बिंदु जोड़ देता है तब भी आपको वह ईमेल प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए यदि आपका ईमेल johnsmith@gmail.com है तो आप अपने पते के सभी बिंदीदार संस्करणों के स्वामी हैं। जैसे जॉन ये ईमेल एड्रेस है और john.smith@gmail.com लिख जाए फिर भी वो आ जाएगा ईमेल। द जीमेल अलाउ डॉट्स इन, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है सेम चीज़। जीमेल पेड सर्विस http://1.google.com। 15 GB ऐसे मिलता है और अगर हम लेंगे तो 100 GB भी मिल सकता है पेड सर्विस। 200 GB भी मिल सकता है, 2 DB भी मिल सकता है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा ईमेल के सारे MCQ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।